السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے درد کا مارا۔ ہم نے کل یہاں تک رکھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ یہ کوئی 11 بجے کے قریب کی بات تھی۔ 2 بجے دن کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا تو یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھ کر بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی تھی۔ اور ابھی آپ لکڑہارا جو ہے یہ جو ہے کوئی 11 بجے کے قریب کا وقت تھا، تو 2 بجے کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کے لیے جانے کو سوچ رہا تھا تو یہ لڑکی جو ہے پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور چند لمحوں تک کیا کیا اس نے ٹکٹکی باندھے، یعنی گھورتے ہوئے چیتے کی بچے کی طرف دیکھا۔ ٹکٹکی مطلب گھورتے ہوئے اور بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئے اور کیا کیا اور مطلب قدموں کی آہٹ کو مطلب آہٹ نکلتے ہوئے کیا کیا آگے نکل گئی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزر گئی تھی اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے لب تھرتھرائے تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ یعنی یہ لڑکی جو ہے اب تھوڑی دیر پہلے جو تیسری بار جو اس دکان یعنی سمجھو کے دکان کے سامنے سے گزر گئی تھی اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے لب تھرتھرائے تھے لیکن اس کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتے پھرتے سمجھو کو ان تھرتھراتے ہوئے ہونٹوں کا خیال آیا اور پھر خیالوں کی یہ رو پہلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتی ہوئی دور پیچھے چلی گئی۔ یعنی جب چیتے کے بچے کے بالوں پر کیا کیا سمجھو نے بے خیالی کے ساتھ مطلب خیالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے سمجھو کو کیا ہوا، ان تھرتھراتے ہونٹوں کا خیال آیا اور پھر خیالوں کی یہ رو پہلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتی ہوئی پیچھے چلی گئی، یعنی دور پیچھے چلی گئی۔ یعنی اس کو مطلب اپنی پرانی بچپن کی خیال آ گئی جب اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، اس کو بھی بہت سارے یا مطلب بلڈنگ خوبصورت عمارت دیکھ کر اس کو پسند آتے تھے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اس لڑکی کی طرح اس کے بھی خون تھرتھراتے تھے۔ اس کا خیال آ گیا جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا اور جب اس کا آبائی مکان آگ کی نذر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا۔ وہ خیال آ گیا جب اس کا عمر جو ہے اس وقت 18-19 سال کا نوجوان تھا اور جب اس کا آبائی مکان آگ کی نذر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا، یعنی اس کے آبائی مکان جو ہے کیا ہوا تھا، آگ میں جل کر ختم ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اسی طرح غیر ارادی طور پر تھرتھرایا کرتے تھے۔ یعنی ان دنوں کیا ہوتا تھا، خوبصورت مکان کو دیکھ کر اس وقت اس کو ایک خوبصورت مکان کو دیکھ کر کیا ہو جاتا تھا، اس کے ہونٹ بھی اس طرح غیر ارادی طور پر یعنی کوئی ارادہ کے بغیر کیا ہوتا تھا، تھرتھرایا کرتے تھے۔ یا جب اس نے پہلی بار ایک دو دھیار رنگ کی شیورلیٹ کی کار دیکھی تھی، یا جب اس نے پلیٹم ٹیکس میں پہلی بار سلوچنا چیٹرجی کو کسی فلم میں دیکھا تھا، کیسی تھرتھراہٹ تھی اس میں۔ کیا ہو جاتا تھا جب اس کو ایک بار دھیار رنگ کی شیورلیٹ کار دیکھتی تھی یا پلیٹم ٹیکس میں پہلی بار سلوچنا چیٹرجی کا فلم دیکھا تھا، چیٹرجی کو فلم میں دیکھا تھا کسی فلم میں، اس وقت اس کے ہونٹ بھی تھرتھرایا کرتے تھے۔ اس کو اس وقت کے خیال آیا، اپنی بچپن کے خیال آیا، کیونکہ ان موقعوں پر اس کے ہونٹ تھرتھراتے تھے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھرتھراہٹ کے معنی کھوج نہیں سکا، یعنی کیا ہوا تھا، اتنے سال گزر گئے تھے لیکن سمجھو کو اپنی بے آواز تھرتھراہٹ، ہونٹوں کی بے آواز تھرتھراہٹ کا معنی جو مطلب نہیں کھوج سکا۔
ज़माना बीत गया था तब से आज तक मुगरबल बाग में मुगरबल बाग में क्या हुआ, मुगरमल बाग में समज्जू का शानदार मकान था। अब क्या हुआ, ज़माना बीत गया तो आज समज्जू जो है आज क्या हुआ, सेठ बन गया, अमीर बन गया। और उसने क्या किया, और उसने समज्जू का मतलब मुगरमल बाग में उसको क्या था, उसका एक शानदार मकान था। इसके गिरेश में दो मोटरें मौजूद थी, यानी उसके गिरेज में क्या था, दो मोटरें, दो गाड़ी मौजूद थी। वो हर आतवार को अपने दोनों पोतों रियाज और एजाज को गगरी बल में घंटों मोटर बोट की सैर कराता था। इन्हें कभी ख़याम में, कभी फिरदौस में फिल्म दिखाने ले जाता था और इनके मासूम सुर्ख लबों की तरफ देखता रहता था, कहीं किसी बेआवाज़ थरथराहट का साया तो नहीं है। इसका दिल अब भी कभी कभी प्लेटम टैक्स में फ़िल्म देखने के लिए मचलता था, यानी इसका दिल जो है अभी भी क्या हो जाता था, फ़िल्म मतलब प्लेटम टैक्स में क्या करने के लिए, फ़िल्म देखने के लिए इसका दिल अभी भी मचलता था। मगर अब अपनी इस चाहत को वो एक जहांदीदा मुस्कुराहट में टाल देता था, यानी अब इस क्या करता था, मगर अपनी इस चाहत को, यानी प्लेटम टैक्स में फ़िल्म देखने की चाहत को क्या करते थे, वो एक जहांदीदा मुस्कुराहट में, जहांदीदा मतलब एक खूबसूरत मुस्कुराहट में टाल देता था। अब वो 18-19 बरस का समदा नहीं था, 57-58 बरस का बावकार बुजुर्ग था। अब क्यों टाल देता था, क्योंकि अब वो 18-19 बरस का समझ नहीं रहा था। अब क्या हुआ था, उसका उम्र जो है 57-58 बरस का बावकार, यानी बावकार बुजुर्ग था। हाजी समझू, नमाज और रोज़े का पाबंद। इसने आखिरी बार चीते के बच्चे की पीठ पर हाथ फेरा और आकर अपनी गदी पर बैठ गया। इस चीते के बच्चे को इसने पिछले साल अपने हाथों से तैयार किया था। इसने क्या किया, आखिरी बार चीते के बच्चे की पीठ पर अपना हाथ फिराकर और आकर अपने गदी पर बैठ गया। और इसने क्या किया, चीते के बच्चे को खुद पिछले साल जो है अपने हाथों से तैयार किया था। हालांकि ये काम अब इसके दूसरे कारीगर और मुलाजिम किया करते थे, मगर न जाने कौन सा लम्हा था वो जब इस छोटी सी खाल को देखकर इसके अंदर छुपा हुआ फनकार जाग पड़ा था। और आज ये लड़की जो अब तक 3 बार इसकी दुकान की चक्कर लगा चुकी थी, इसके फन के आगे क्या हुआ, होश व हवास खो बैठी थी। समज्जू ने हुक्के की नाई होंठों में दबा ली और हल्के हल्के धुएं के साथ साये में इस लड़की के बारे में सोचने लगी। दान पान जिस्म कमर के नीचे तक बालों की 2 चोटियाँ 18-19 बरस की लगती थी, यानी वो लड़की उस लड़की के बारे में सोचने लगी। समझू, दान पान मतलब दुबली पतली कमर, जिस्म कमर के नीचे तक बालों की 2 चोटियाँ 18-19 बरस की साल की लगती थी। हाँ, इस उम्र में कोई हैरान कुन चीज़ देखकर होंठ थरथराते हैं और आवाज़ नहीं निकलती, बिल्कुल जैसे इस उम्र में इसके साथ हुआ करता था। बेचारी मासूम लड़की, चांद को हथेली पर उतारने की तमन्ना, यानी जिसके पास पैसा नहीं होता लेकिन उसको वो चीज़ जो है पसंद आता है, उसके पास उसके बराबर पैसा नहीं होता, उसको कहते चांद को हथेली पर उतरने की तमन्ना। मगर जब एक मामूली आईना भी पास ना हो तो चांद कितना दूर लगता है, निगाह से दूर, दस्तरस से दूर, मगर ख्यालों के पास, होंठों की बेआवाज़ थरथराहट के अरीब करीब, यानी अरीब करीब मतलब आसपास। सोचते सोचते अचानक समज्जू को ख्याल आया कि शायद इस लड़की के पास इतने पैसे ही ना हों कि वो अपने ख्यालों के इस चांद को ख़रीद सके। कितना अजीब सा लगता है जब दिल एक तरफ खींचता हो मगर जेब दूसरी तरफ घसीट कर ले जाती हो। यानी क्या हुआ, समज्जू को ख्याल आया कि इस लड़की के पास इतनी पैसे नहीं है। उसने क्या किया कि इसको ये जो है अपनी फेवरेट चीते के बच्चे को ख़रीद सके, इतना पैसा नहीं। उसने सोचा कि कितना अजीब लगता है जब दिल जो है एक तरफ खींचता और जेब जो है दूसरी तरफ घसीट कर ले जाती हो। महरूमी, लाचारी, मजबूरी, आदमी का अपने आप पर से एतबार ही उठ जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। समज्जू ने सामने पड़ी हुई पेंसिल और कागज़ का सहारा लिया। वो हिसाब लगाने लगा, मुनाफा निकाल दो, यानी जो चीते के बच्चे से मुनाफा
वाक़े आते थे उसको निकाल दो। बहुत कुछ दे रखा है अल्लाह ने, अल्लाह पाक ने। मेहनत की उजरत भी नफ़ी कर दो, यानी मेहनत की यानी मज़दूरों की उजरत जो इनाम के तौर पर देते थे उसको क्या करो, नफ़ी करो, उसको भी निकाल दो। सब इसी रब जलील का फजल है। सिर्फ लागत का हिसाब, खाल की कीमत, दूसरी चीज़ों की कीमत जो इस्तेमाल की गई, बस कुल 1780 रुपये। इस पतली सी लड़की का दिल जो न जाने मुल्क के किस हिस्से से शायद पहली बार कश्मीर की सैर को आई थी। इससे जब भी कश्मीर की याद आएगी तो चीते का ये बच्चा इसकी यादों की तौक पर हमेशा ज़ख्म भरने के लिए तैयार नज़र आएगा। क्या हुआ जब ये लड़की जो है वो समझू सोचने लगी, लड़की मुल्क के किस हिस्से से कश्मीर को सैर करने के लिए आई। जब इस लड़की को इसके बारे में पता चलेगा तो मतलब इस लड़की को इस चीते कश्मीर की याद आएगी, तो इस चीते के बच्चे इसकी यादों की तौर पर क्या हो जाएंगी, ज़ख्म भरने की, यानी ज़ख्म भरने के लिए तैयार होंगी, ज़ख्म भरने के लिए। इस लम्हे वो लड़की फिर दुकान के अंदर दाखिल हो गई। क्या करूं, ये टाइगर कप का हमको बहुत लाइक किया, यानी इस लड़की ये सोच रहे थे समझो। तब ये लड़की फिर दुकान के अंदर आई और कहा क्या करूं, ये टाइगर कप हमको बहुत लाइक किया, यानी हमें बहुत पसंद आया। लाइक मतलब पैसा जास्ती है, यानी पैसा ज़्यादा है, अपन के पास इतना पैसा नहीं है। अब उस लड़की कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बहुत खर्चा है इधर कश्मीर में। अब ये लड़की कहती है कि यहाँ कश्मीर में बहुत खर्चा होता है, कश्मीर में मतलब महंगा होता है, क्या करूँ, ये टाइगर कप हमको एकदम किल कर दिया। हाय, अब ये लड़की कहती है कि ये टाइगर जो है, ये टाइगर जो है कप जो है मुझे बहुत पसंद आया, उसने मुझे किल कर दिया। किल करना मतलब अंग्रेजी लफ्ज़ है, मार दिया। समज्जू के चेहरे पर एक अलबेली सी मुस्कुराहट खुल उठी। मालूम है बीबी। अब ये सुनकर समज्जू के चेहरे पर क्या हुआ, एक अलबेली सी, एक हल्की सी मुस्कुराहट खुल उठी। मालूम है, और कहता है मालूम है बीबी, सब समझ गया हूँ, पर कोई बात नहीं, हम तुमको ये टाइगर कप बिल्कुल कास्ट प्राइस पर देंगे। कास्ट प्राइस मतलब इसकी असली कीमत पर देंगे। हमने हिसाब लगाया खाली मटेरियल का, कास्ट समझ गई ना, का खाली 1780 रुपये। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, हम समझेंगे हमारा खुदा खुश हो गया। क्या बोला, 1000 कमती बापुरे, एक ही रात में 1000 कमती। अपन को देश में बोला था इधर सब चीट है, सच बोला था। 500 रुपये लेना तो बात करो। यानी ये लड़की जो है कहती है कि एक रात में 1000 रुपये कम हो गया। मैंने अपनी देश में सुना था कि कश्मीर में सब चीट होते है, पहले तो इतना ज़्यादा कीमत बोला, अब इतने ज़्यादा कम कर दिया। सच बोला था, 500 रुपये लेना है तो बात करो। ये लड़की ही कहती। आहिस्ता आहिस्ता समज्जू ने इन लफ्ज़ों को अपने कान में उतरते सुना। आहिस्ता आहिस्ता ही इन लफ्ज़ों की तलखी इसने अपने अंदर बहुत अंदर महसूस की। उसने हैरान सी निगाहों से इस दान पान सी लड़की की चेहरे की तरफ देखा। दान पान मतलब दुबली पल्ली जिस्म की लड़की के चेहरे की तरफ देखा। 500 रुपये लेना है तो बात करो, इधर सब चीट है। पहली जास्ती दाम पर, यानी पहली ज़्यादा दाम पर ज़्यादा दाम बोलता है, फिर हैगलिंग करता है यानी चीट करता है, फिर बहुत कमती में बेचता है। बहुत समज्जू ने कुछ कहना चाहा, इसके होंठ थरथराए मगर कोई आवाज़ न निकल सकी। मेरा खुदा, ये होंठों की खामोश थरथराहट इतने बरसों के बाद। इसने धीरे से कागज़ का वो पुर्जा उठाया जिस पर उसने अभी थोड़ी देर पहले हिसाब लगाया था। बेख्याली में इसने कागज़ के पुर्जे किए और फिर अचानक इससे महसूस हुआ कि जैसे ये चीते का बच्चा एक ही जसद लगाकर, यानी एक ही छलांग लगाकर इसके सीने पर सवार हो गया और अपने तेज़ नुकीले दांत इसकी शहरक यानी इसकी जिस्म पर पियोस कर देगा। पियोस मतलब ज़ख्म कर देगा।